And Dr. Menon, a bit of a workaround to be carried out, but at the end, very, very happy to welcome you on Youth Talks. Health Hacks Part 1 is what we are at today. Without much ado, friends, let me take this opportunity to welcome one of the most popular celebrities that we have in the health and wellness industry. Dr. Sangeeta Menon has done a PhD in dietetics. She's a master's in food, nutrition, and its service management. A graduate in food and nutrition, Dr. Menon has also been a very, very successful entrepreneur, having successfully set up more than one, enterprise. She's also the co-founder of Alive Again, a premium health cafe, and also helped in running one of the most popular and successful gyms and health centers in the southern part of India, southern part of Gujarat rather, called Galaxy Health Zone. She comes with us with about 20 years of experience in the food, fitness, and health industry. She's also received an award for Best Female Entrepreneur 2019 from one of the more popular startup centers in India. Friends, there's much more to know from Dr. Menon. There's much more to know about Dr. Menon. I've been a part of her consulting. I've seen, people coming in from Mumbai, the Bollywood celebrities and sports stars from the country coming in and seeking her advice. Before we take off, friends, there's a small disclaimer that I'd like to add. Anything that she's going to be suggesting or anything that you're going to be hearing, please do not do things in case you are suffering from a health condition. Do take advice of your, physician or your medical, advisors, because that is going to be very, very important. Dr. Menon is also an aerobics fitness trainer. So in case you were to get into some kind of a physical activity, please do so under medical guidance. Right now, when we speak, as you'd be listening to a lot of inputs from her, you might be very keen on practicing everything that she's been speaking. But if you've got any health condition, if you're suffering from any kind of say serious conditions, please do communicate with her, contact her. We'll share her coordinates with you in the very, very near, at the end of the session in the very near future. So without much ado, Dr. Menon, I'd like to straight away put up our first question to you, and that is a burning question. This is lockdown. We are locked down in the confines of our homes. How do I keep myself healthy? I'm getting so many questions. How do I keep myself healthy? Because I do believe we are eating good food at home. We are eating balanced diet at home, food cooked at home, but still, I keep piling on weight. So what would be your advice to our viewers right now? How do I stay healthy in the lockdown? Thank you for calling me here, Mr. Himadri. I'm very passionate about my chosen field, health and healthy eating. So thank you once again for calling me here. And it's really good to talk about health and healthy eating during this lockdown period. I would like to use Hindi as a medium of communication, so that सब लोग को समझ में आए. मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी. आपका आंसर देने से पहले मुझे एक किस्सा मुझे आपको बताना है. वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ता है, इसीलिए मैं उस किस्से को आप सबसे शेयर करना चाहूँगी. 3 दिन पहले मैं अपने कोर्टयार्ड जो है, वो आंगन जो है, वो झाड़ू मार रही थी. लिटरली झाड़ू मारते मारते 15 मिनट हो गया और आधा ही आंगन कंप्लीट हुआ. और मुझे ऐसा लगा कि एक ग्लास पानी कोई मेरे को दे देते तो बहुत अच्छा होता. और बिलीव मी, उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि जो भैया जो मेरे यहाँ पे जो हमेशा साफ करते हैं, वो उनको भी तो ऐसा लगता होगा कि एक ग्लास पानी मुझे मिल जाए उस समय. मुझे ऐसा लगा कि वी हैव टू बी मोर हम्बल. हम लोग उस लोगों की तरफ ये थोड़ा सा और रेस्पेक्ट बढ़ गया है जो हमारे लिए काम करते हैं. मैं 3 दिन से सच्ची में मैं ऐसे सोच रही हूँ. हम लोग आई थिंक सारे फीमेल्स मेरे से ये मतलब मेरी बात से वाकिफ होंगे कि हमको मेड्स के ऊपर ज्यादा रेस्पेक्ट आ रहा है अभी कि वो हमारे लिए कितना हेल्प करती हैं. और वैसे ही हम बहुत हम्बल बन गए हैं.
और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है मिस्टर माधुरी कि हम हम्बल ईटर्स भी हो गए। हम खाना भी काफ़ी हम्बल वे में खाने लगे हैं। वी हैव बिकम मोर हम्बल ईटर्स। अभी हस्बैंड्स को कद्दू के सब्जी अच्छे लगने लग गए हैं। बच्चों को लौकी का भी सब्जी खाने लग गए हैं। मम्मी का सैंडविच, सिंपल सैंडविच भी पिज्जा और बर्गर लगने लग गया है। सो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि हम हम्बल ईटर्स हो गए हैं, और वो कहीं ना कहीं ये वेट में कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। बस अपने को इसको कंटिन्यू करना है। और जहां रही बात, आपने जो वेट लॉस की बात की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी मुझे यही इसी टॉपिक पे ही पूछा जाता है। और या तो 2 से 3 kg बढ़ गया है, या तो बिल्कुल अब काफी हद से ज्यादा फूल गए हैं। यही सारा मुझे बात आ रही है। तो ये जरूर मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। सबसे पहली बात, हमारा कैलोरी जितना बर्न होता है, उतना हमारा जो वेट है वो कंट्रोल में रहता है। अभी हमारे मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। जरा भी हमारा हिलना नहीं रहा है। बेड से उठा, बेड से उठ के बैठ के फिर सीधे कमोड पे बैठ गए, कमोड से सोफे पे बैठ गए, सोफे पे से डाइनिंग टेबल पे बैठ गए, डाइनिंग टेबल से वापस अपने सोशल मीडिया के लिए बैठ गए। हम इतना बैठ रहे हैं कि कैलोरी बर्निंग तो हो नहीं रही है। सो वेट लॉस करना, सही बताऊं तो ये सही नहीं होगा। ये एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। हाँ, आप एक बहुत अच्छा चीज कर सकते हैं, वो है वेट मेंटेन करना। आप अगर वेट मेंटेन कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, कुछ हद तक लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं और वेट लॉस कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो गाइडेंस लेके वेट लॉस कर भी रहे हैं। बट मेरा सजेशन ऐसा होगा कि आप वेट को मेंटेन कीजिए ये लॉकडाउन पीरियड पे। और उसके लिए हो सके तो, और अगर आपको सही में वेट लॉस सोचना ही है, अगर उस मामले में आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं इतना बोलूंगी कि आपका एक मेजर कैलोरी बर्निंग हमारा बंद हो गया है। सो हो सके तो आप 2 मील पे रखिए, ब्रेकफास्ट एंड लंच रखिए। डिनर को आप कुछ हाई फाइबर, हाई मतलब जो सूप है, सैलेड्स हैं, और थोड़ा सा प्रोटीन्स है, और थोड़ा जिस प्रोटीन्स जैसे दाल वगैरह है, मिक्स दाल वगैरह है, ये सारे चीजों से आपको थोड़ा सा कार्ब्स भी मिल जाएगा। प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से वो थोड़ा आपका फिलिंग भी रहेगा, और फाइबर है तो आपको अच्छी मतलब पेट भर भी जाएगा और अच्छी नींद भी आ जाएगी। कहीं ना कहीं कैलोरी रिस्ट्रिक्शन के लिए सबसे अच्छा यही टिप है सर। थैंक यू सो मच। आपने कहा कि फाइब्रस फ्रूट खाने से काफी कुछ मैनेज हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन एक और चीज इन दिनों हम सुनते आ रहे हैं, और मीडिया ने इसके बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी देने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, आयुष मंत्रालय भी यही कह रहा है कि इस समय में ऐसा खाना खाइए जिससे आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अब विटामिन सी की बात बहुत होती है, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सिर्फ खुराक खाने से ही क्या हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, या इसके अलावा और भी हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके, कि ये बाहर से आई हुई बीमारी शायद मेरे शरीर में एंटर न कर पाए। आपका क्या सुझाव देना होगा हमारे श्रोताओं को? इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने निकाला था, और मैं उसी टॉपिक पे आपको बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी जो है वो मेजरली आपका खुराक से आता है, नो डाउट अबाउट इट। आपका विटामिन सी जो है वो आपको इनफ लेना चाहिए। खाली विटामिन सी नहीं, विटामिन डी, काफी सारे ऐसे कंटेंट है जो अपने बॉडी के लिए जरूरत है, विटामिन एंड मिनरल्स अपने बॉडी के लिए जरूरत है, जो इम्यूनिटी बढ़ाएगी। अब उसमें से विटामिन सी में तो हमको मिलता ही है, मतलब सारे सीड से मिलते हैं, नींबू, आंवला, फिर फ्रूट्स में देखा जाए तो गुआवा, पपाया, ऐसे विटामिन ए सब सब चीजें से मिल जाती है आपको। लेकिन इस सब के अलावा इम्यूनिटी अच्छा खाने पर ही इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है। हमारे बहुत बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नींद, एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर अच्छा नींद अगर आपको नहीं मिलता तो आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है। आप बहुत ज्यादा अगर मीठा खा रहे हैं और बहुत शुगर ले रहे हैं, और बॉडी में बहुत ऑक्सीडेटिव डैमेजेस हो रहे हैं, तो भी आपका ये सारा खाना जो आप अच्छा खाना खा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं और ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहे हैं। सो इम्यूनिटी के लिए आपको खाना भी बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, और शुगर के कंटेंट को कम से कम लीजिए। बहुत फ्राइड फ्रूट वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि उस सबसे आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है और आपका इम्यूनिटी कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबके लिए बहुत एस्टोनिशिंग था जब मैंने ये बात की थी, ये कि कॉन्स्टिपेशन ऐसा चीज है जो
कॉन्स्टिपेशन ऐसा चीज है जो इम्यूनिटी को एकदम लो करती है, और अभी कॉन्स्टिपेशन आना बहुत ज्यादा चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लोग सब ज्यादा से ज्यादा बैठ रहे हैं, हर जगह बैठ ही रहे हैं। सो बैठते बैठते कॉन्स्टिपेशन का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए बॉडी में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, कंपल्सरी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट अगर होते रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, अच्छी नींद भी आएगी, और जो हम खाना, जो अच्छा खाना खा रहे हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने का है, वो सारा बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें। जी। एक चीज बताइए कि चीनी यानी शुगर और ऐसे कुछ खुराक खाते हैं जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारे सेल्स को, क्या इसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे? कैन यू स्प्रेड अ लिटिल बिट ऑफ लाइट ऑन व्हाट इज ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेल्स एंड हाउ डज इट हर्ट अस? यस, द थिंग इज व्हाट, हमारे हर एक सेल्स में एक तरह का हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हम हमारे सेल्स अपने आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं अपने सेल्स को। हमारे मतलब हम मैं ऐसे बोलती हूँ, भगवान इतना अच्छा डिजाइन किया हमारे बॉडी को कि हर एक सेल्स को क्लीन करना हमारे लिए पॉसिबल है, अपने आप से पॉसिबल है। लेकिन ये बहुत ज्यादा सॉल्टी स्नैक्स, बहुत ज्यादा शुगरी फूड, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, ये सब जब जाता है तो सेल्स जो है, ये जो क्वालिटी है, जो खुद से जो डिटॉक्स करने की जो क्वालिटी है, वो पूरा, वो काफी हद तक खो देती है। तो इसीलिए जितना, और ये जो ट्रांसिलिटी का इश्यू आता है, और जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जो हम जो बोलते हैं टॉक्सिफाई हम करते हैं, हम बहुत ज्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को लेते हैं, शुगर और ये फ्राइड फूड और स्नैक्स फूड, सॉल्टी स्नैक्स के थ्रू। तो ये सेल्स जो है अपने आप से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसीलिए भी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस सब चीजों पर का ध्यान रखें कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ता रहे। एक प्रश्न जो इस पीरियड के लिए काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आपसे पूछे, अ, एक कॉमन स्टेटमेंट ये भी सुना जा रहा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि आप अपने शरीर को अल्कलाइन बनाइए, अपने खाने को अल्कलाइन बनाइए, क्योंकि जितना एसिडिक होगा उतनी बीमारी और घर कर जाएगी। तो हाउ डू वी स्टे हाउ डू वी कीप अ बॉडी मोर अल्कलाइन? क्योंकि कई बार होता है कि वो अल्कलाइन पानी पीने से हमें मानसिक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि बॉडी अल्कलाइन हो गया, लेकिन शायद ये बात सच नहीं है, सिर्फ खाने से अल्कलाइन हो रहा है। आई डोंट नो, सो क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल। एल्कलाइन अपने बॉडी का, जैसे हमारा जिस तरह का खाना पीना है, उसके चलते हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हम एसिड वाले फूड खाते हैं। तो अगर आप एल्कलाइन नहीं करेंगे, उस तो बहुत हमारा वो बैलेंस सही नहीं रहेगा बॉडी में, और इंडाइजेशन होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहेगा। जो बर्पिंग है, जो हार्ट बर्न है, जो एसिड रिफ्लेक्स है, ये सारे रीजन उसी के हैं। सो एल्कलाइन वो फूड होता है जो हम कुक नहीं करते, जिसको कोई हीट प्रोसेस से नहीं पास ऑन करना पड़ता। तो जैसे अभी आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह है, उस सबको, जैसे नट्स वगैरह है, दोज आर वेरी रिच इन अल्कलाइन। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, नारियल पानी है, ये सारी चीजें बहुत बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन होती है। स्ट्रेंजली ऐसा है कि इवन जो फ्रेश निकाला हुआ जो दूध है, जो मतलब गर्म भी नहीं किया हुआ, वो भी अल्कलाइन होता है एक्चुअली। जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो एसिडिक बन जाती है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हीट प्रोसेस से पास ऑन होती है, और वो एसिड वाले में चले जाता है, मोड में चले जाता है। इसके लिए हमें कंपलसरी एक दिन में हमको थोड़ा सा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना जरूरी है। मतलब आपको अच्छा लगे या ना लगे, हमको अपना सिस्टम को अच्छा रखना है, तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें इसी से जुड़ते हुए जो जो अपने सिस्टम में अपने ठीक ठीक रख सकते हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में जो मेरे तरफ से कुछ टिप्स हैं, जो इस लॉकडाउन पीरियड में सबके लिए बहुत जरूरी है, वो है कुछ टॉपिक्स मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत वो चार पांच ऐसे टिप्स हैं जो आप लोग इसी लॉकडाउन में ही हैबिट कल्टीवेट कर सकते हैं। इसी लॉकडाउन पीरियड में ही आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसको एक हैबिट बना सकते हैं। एक बार लॉकडाउन खुल गया, फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे आ गए, आप इस सब चीजों से आपका दिमाग में ये सब आएगा नहीं। सो सबसे पहला चीज है च्यू। कितना आप च्यू करते हैं? अपने पास दांत कितने हैं?
32 है आइडियली, हाँ, और बोलते हैं कि 32 टाइम्स चबाना चाहिए। अभी हम यहाँ खाते हैं, इधर से चबाते हैं, इधर से चबाते हैं और निकल जाते हैं। हम हार्डली 2 या 3 बार ही चबाते हैं और वहीं पर ही हमारा क्या बोलते हैं, च्यू का प्रोसेस ही बंद हो जाता है। मुंह में च्यू इतना ज्यादा करना चाहिए। अभी लॉकडाउन है तो आप कॉन्शियसली खाने को च्यू कीजिए। करते 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 मुंह में सलाइवा और जो खाना है उसको इतना अच्छा पच जाना चाहिए कि पेट में जाते जाते हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो जाना चाहिए। सो यही लॉकडाउन पीरियड है जब आप च्यू को एक हैबिट पे डाल सकते हैं ताकि उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकें। सेकंड है पानी। पानी जो है ऐसा कि ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में 3 ग्लास पानी, लंच एंड इवनिंग के बीच में 3 ग्लास पानी, और इवनिंग एंड डिनर के बीच में 3 ग्लास पानी। ऐसा इसको एक हैबिट में डालिए, क्योंकि अभी ये प्यास नहीं लगती, घर में बैठे हैं, अधिकतर लोग एसी ऑन करके रखे हुए हैं, टीवी के सामने है, प्यास तो लगती नहीं। सो इसीलिए ये पानी जो है ये इसको भी एक हैबिट पे लाइएगा। थर्ड है कि 20 मिनट का डाइट थ्योरी होता है, हम इसको कहते हैं 20 मिनट्स डाइट थ्योरी। अभी उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है ना, हमको सिर्फ 20 ही मिनट बोलता है भूख लगी भूख लगी भूख लगी, उससे पहले उसके बाद नहीं बोलता। अगर आप 2 रोटी खाते हैं धीरे धीरे करके 20 मिनट में, या आप 4 रोटी खाते हैं 20 मिनट में धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी करके, या कैसे भी, ये 2 रोटी और 4 रोटी 20 मिनट के बाद सेम लगने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन बंद कर देती है बोलना कि आपको भूख लगी है। सो ये भी जाना बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे चबा चबा के खाएं और इसको आगे बढ़ाएं। एक और छोटी सी टिप है जो जितना आप यूटिलाइज कर सको उतना अच्छा। हर एक चीज को छोटा यूज कीजिए, छोटा प्लेट, छोटा कटोरी, छोटा स्पून। जितना छोटा करेंगे तो क्या है, अपने आप जो खाना जो है वो काफी कम क्वांटिटी में जाएगा और हमको प्लेट भरा रहेगा तो अपने को ऐसा लगेगा बहुत खाया है। और स्पून है तो 5-6 बार ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो अपने को लगेगा बहुत ज्यादा खाया है। सो थोड़ा साइकोलॉजिकली भी अपने को बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को छोटे छोटे चीजों पे करें। और बेडरूम को कभी भी डाइनिंग रूम मत बनाइएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बेडरूम को कभी भी डाइनिंग रूम मत बनाइएगा। खाना एक रूल बनाइएगा कि खाना अगर खाना है तो आप डाइनिंग टेबल पे जाके ही खाएंगे। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये इश्यू होता है और मैं सारे मदर्स से ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों को ये टाइम पे एक बहुत मेजर टिप यही होगा कि बच्चों को हम अधिकतर, क्योंकि टाइम नहीं होता इसलिए जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ, बच्चों को धीरे से खाने का हैबिट डलवाइए। अभी तो सबके पास टाइम है, किसी को जल्दी नहीं है, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खत्म करो फिनिश करो, ये बहुत बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को ना टेक्सचर, टी हम बोलते हैं TST, टेक्सचर, स्मेल और टेस्ट, इसको एंजॉय करने दीजिएगा। खाना खाते वक्त ना माँ बाप, ना बच्चे, ना कोई भी टीवी या कोई टेक्नोलॉजी के सामने मत रहिए। ये एक बहुत अच्छा लॉकडाउन पीरियड है, सब लोग साथ में बैठ के खाइए और हर एक चीज का TST को समझिए। टेक्सचर, स्मेल एंड टेस्ट, उस खाने को आप जितना अच्छे से खाएंगे, सोच समझ के खाएं। हम इसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। हम दिल से तो खाते हैं, मुंह से खाते हैं, लेकिन मन से कभी नहीं खाते। ये इसको हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। जितना आप दिमाग लगा के खाएंगे, उसको छू के खाएंगे, उसको स्मेल करके खाएंगे, उतना हमारा डाइजेशन अच्छा होगा। और वेट सोचिए, इससे भी वेट आप काफी अच्छा लॉस कर सकते हैं। Awesome. I think this has been a great point that you mentioned, TST, texture, smell and taste. क्योंकि खाते हैं और सीधा निकल जाते हैं, हम सीधा चबाए बगैर we keep swallowing and then yes, it is obvious that the digestion will not really be very proper and then associated आपने जो challenges बताए कि constipation वगैरह। एक प्रश्न आपसे ये पूछना था, आपने कहा कि अलग अलग समय लंच और से इवनिंग के बीच में कुछ पानी पीना है, शाम और खाने के बीच में कुछ पानी पीना, तो ये पानी भी कैसे पिया जाए? एक साथ में पी जाऊं चलेगा या पानी पीने का भी कोई तरीका होगा? हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि 500 ml तक आप अपना पेट में डाल सकते हैं। यूजली हम 1 ग्लास पीते हैं तो 250 ml, फुल 1 ग्लास पीते हैं तो 250 ml होता है। सो एट ए टाइम आप 2 ग्लास पानी आप ले सकते हैं, या आप एक एक घंटे के बीच में, अगर आपका खाना और लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच में 3 घंटे का गैप है, तो एक एक घंटे के गैप में एक एक ग्लास पीजिएगा। इतना जरूरी है कि 11 से 12 ग्लास पानी अभी भी लॉकडाउन पीरियड में भी लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने बोला 2 से 3 ग्लास पानी सुबह, फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच,
एंड देन लंच टू इवनिंग, इवनिंग टू डिनर, इस सब के बीच में 3 ग्लास आपका जाना ही चाहिए। और फिर देखिए ना आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होगा, ना बर्पिंग होगी, और ना वेट बढ़ेगा, क्योंकि वेट लॉस का सबसे अच्छा मेडिसिन जो है वो वाटर ही, पानी ही। हम ये भी सुनते हैं कि जब पानी पीते हैं तो उसको थोड़ा वार्म कर लिया करिए, गुनगुना पानी पीना अच्छा होता है। उसमें थोड़ा-सा नींबू डाल दीजिए तो डिटॉक्स के लिए फ़ायदा होता है, उसमें थोड़ा हनी डाल दीजिए। लेकिन अभी आपने कुछ कहा कि हनी तो प्रोसेस होके ही आ रहा है, तो क्या हम सुबह पानी पीते हैं तो उसमें शहद डालें या न डालें? या फिर ये नींबू वाला गर्म पानी पीना भी सही बात है कि इसको भी अवॉइड किया जाए? नींबू सुबह जो पानी पीने के लिए जो बोलते हैं वो लोग वेट लॉस के लिए करते हैं, जबकि ऐसा कोई प्रूवन है ही नहीं, ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं है, ऐसा प्रूवन रिसर्च है ही नहीं कि सुबह उठ के ये नींबू पीते ही वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा है तो नींबू का सबसे ज़्यादा मार्केट होना चाहिए अभी, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि नींबू जो है, हाँ, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं मदद करती है, क्योंकि नींबू जो है वो हमारे डिटॉक्सिफाई करती है, जैसे आपने बोला, डिटॉक्स करने में बहुत मदद करती है। तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हमारे शरीर जितना क्लीन रहेगा, उतना फैट लॉस में मदद करेगा। और जैसे बोला अभी, जब तक आप ऑर्गेनिक या प्योर हनी नहीं लेते, तब तक आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये सारे जो हनी है, आप उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। सुबह का हनी लेना जो है, जो ये जो अभी जो मिल रहा है मार्केट में, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही। अच्छा, उससे नुकसान है क्योंकि मैं तो अपनी वो सुबह उठ के बढ़िया सी बड़ी बियर मग भर के ग्रीन टी विद लेमन एंड हनी, क्योंकि कई ये पढ़ते आए हैं कि हनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, हनी इज गुड डिटॉक्सिफायर। बट ये आपने बहुत सही कहा कि अगर प्रोसेस्ड हनी है, बॉटल में से कोई भी अगर हनी निकाला हुआ हो तो शायद उसे हम यूज ना करें। बहुत सारी जगह पे ये ऑर्गेनिक हनी मिल रहा है, बहुत सारी जगह पे नेचुरल फ्रेश मिल रहा है। सो उसको यूज करें प्लीज। अगर करना है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, आपने काफी कुछ अ, बातें करी। एक प्रश्न आ रहा है पानी का कि किसी ने ऐसा प्रश्न लिखा है कि मैं दिन में 3 लीटर पानी तो पी लेता हूँ, लेकिन मेरा जो यूरिन का कलर है वो अभी भी डार्क है। तो क्या मुझे चिंतित होना चाहिए इसके बारे में? सी, अगर आप 10, 11, 12 ग्लास पानी पी रहे हैं और फिर भी आपका यूरिन का कलर डार्क है, तो दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे अभी कुछ फूड प्रोडक्ट में ही हमारे इतने कलर ज्यादा होते हैं कि हम खाते हैं तो वो नेचुरल कलर भी है और आर्टिफिशियल कलर भी है। जैसे अभी नेचुरल कलर बीटरूट वगैरह अगर आप अच्छे से लेते हो, काफी अच्छे क्वांटिटी में लेते हो, आप दूसरे दिन आप देखेंगे आपका यूरिन थोड़ा सा एक पिंक कलर का निकलेगा। सो काफी एस्टोनिशिंग बात है कि उतना इफेक्ट करता है वो नेचुरल कलर होने के बावजूद भी। सो या तो ये रीजन हो सकता है, या अगर बाई चांस अगर आपको अनयूजुअल कलर दिख रहा है, तो प्लीज अप्रोच टू द डॉक्टर। आप डॉक्टर से बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कहीं हम कोई चीज डिले करके गलत ना कर पाए। सो डॉक्टर से बात करना सबसे ज्यादा अच्छा। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट आपने जो बताया कि अगर अनयूजुअली येलो है, डार्क है, तो पॉसिबली यू कैन कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर वी मूव अहेड। एक और प्रश्न आ रहा है हमारे एक श्रोता मित्र है, ही इज आस्किंग जिन्होंने प्रश्न भेजा है, ये बहुत ही अच्छे मैराथन रनर हैं। ओके। इनका प्रश्न है कि डिनर और नींद के बीच मैं कितना पानी पीऊं? सही बताऊं तो डिनर के बाद जितना लिमिटेड में पानी पियो उतना अच्छा है। लेना चाहिए, बहुत ही लिमिट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी, अगर बॉडी पानी मांग रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गिव। इतना है, अगर प्यास लगी है, हमारा खाना इस तरह का गया है कि हमारे बॉडी अगर पानी मांग रहा है उतने गैप में, 3 घंटा 4 घंटे के गैप में, तो आप पानी पीजिएगा। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, सोने से कम आधा घंटा पहले तक ही आप पी सकते हैं, उसके बाद आप नहीं पीजिए, क्योंकि अपना ब्लैडर फुल होके हमको सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके आपको पानी जो है वो आपको मतलब पूरा ब्लैडर को एम्प्टी करके ही सोना चाहिए। एक तो नींद डिस्टर्ब नहीं होती, और दूसरा लोड नहीं पड़ता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना लें। हमारा एक और प्रश्न आ रहा है, जहाँ पे प्रश्न यह है कि जिन्होंने पूछा है वो कह रहे हैं कि मैं 50+ हूँ। हाँ। ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज्यादा पानी पीना हार्मफुल है, और 50+ के जो लोग हैं
उनके लिए कोई कॉमन ईटिंग एडवाइस आप अभी इस माहौल के लिए देंगे? Is more what are harmful and what are the eating advice that you would want to suggest for people who are above 50? ओके। सबसे पहली बात, पानी जो है, बहुत लोग बोलते हैं बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो। बहुत ज़्यादा पानी इज़ एक्चुअली हार्मफुल, क्योंकि हम अल्टीमेटली बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग लोड क्रिएट कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हम और फिर पानी का इंटेक जो है वो 2 चीज़ों के लिए मतलब यू हैव टू टेक केयर ऑफ 2 थिंग्स कि आपका बॉडी का एक्टिविटी कितना है। हाँ, किसी का एक्टिविटी एकदम ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हेवी है, तो आपका पानी का कंजम्पशन डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि आपका स्वेटिंग होगा, आपका बॉडी में से पानी इवैपोरेट होगा, पर्सपिरेशन की वजह से हो सकता है कि आपका पानी का इंटेक ज्यादा हो। सो उस केस में ठीक है। अदरवाइज अगर आपका बॉडी में ज्यादा पसीना वगैरह नहीं हो रहा है, आपका बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको एक लिमिट में ही पानी पीना चाहिए, आपको किडनी को लोड नहीं देना चाहिए। फिर 50 ईयर्स से प्लस वाले लोगों को हमेशा याद रखिएगा कि आप जितना अपने यंग टाइम में खाते थे, उसमें से कम आपको एक 500 कैलोरी तो कम ही खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं डाइजेशन पावर जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा हमारा एसिड रिफ्लेक्स का चीजें बढ़ जाती है। बॉडी मूवमेंट, क्योंकि पहले जैसा हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं रहता, तो भी अपना डाइजेशन में तकलीफ आ जाती है। इसीलिए हर एक ऑर्गेन्स थोड़ा थोड़ा सा कम फंक्शन, बहुत स्लो फंक्शन करने लग जाता है। इसके लिए कम क्वांटिटी करना जरूरी हो जाता है 50 प्लस के लिए। सिंपल फूड खाइए। और आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 50 प्लस के लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन आने का भी चांसेस ज्यादा रहता है। सो आप लोगों के लिए कंपल्सरी है, अनिवार्य है कि आपको फाइबर फूड खाना ही चाहिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के अलावा ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह हो, ओट्स का चीला हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा फाइबरस फूड ले सकें उतना अच्छा, और हेल्दी फूड खाएं और लिमिटेड में खाएं। जितना आप लिमिटेड में थोड़े थोड़े देर में खाएंगे, 50 प्लस लोगों को कभी वो नुकसान नहीं करेगा। We have just about time for 3 more questions. Since you were on water, there is a question that has come in. ये प्रश्न ऐसा है कि एक मान्यता है, एक धारणा है जो शायद सांस्कृतिक है या कल्चरल है. I would not be able to point and put a finger to that. ऐसे कहते हैं कि पानी पीते समय बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि खड़े होके पीते हैं तो नी इश्यूज हो जाते हैं. क्या ये बात सही है? जनरली क्या है, ये सही बात है कि जितना हो सके आप बैठ के पानी पीजिए। पानी का कंजम्पशन हमेशा हमारे ये सिटिंग पोजीशन पे हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत सारा जो हमारा जो फंक्शन है वो नॉर्मल होता है। यूजुअली क्या होता है, जब हम बॉडी को मूवमेंट में होते हैं, बॉडी मूवमेंट में रहती है, तब हमारा ब्लड सर्कुलेशन हेवी रहता है, उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। इसके लिए हम मूव करते वक्त या खड़े होते वक्त हम बोलते हैं नहीं पीना चाहिए। जितना हो सके शांत मन से, शांति से पानी पीना चाहिए। और पानी में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। सो उस एनर्जी को आप मतलब उस एनर्जी को सोच के, पॉजिटिव सोच के ही पानी पीजिए। सो वो भी अपने हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत मदद करेगा। This is a very good point because जहाँ पे हम कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जापान में, पूरा पानी के स्ट्रक्चर के बारे में, कि पानी को अगर अच्छे म्यूजिक के आसपास रखा है तो उसके मॉलिक्यूलर, उसके जो फॉर्मेशंस, दे स्टार्टेड बिकमिंग वेरी पॉजिटिव. सो अगर अच्छा सोच के उसको अच्छे से चार्ज करके पिएंगे तो ऑब्वियसली बॉडी विल बिकम मच बेटर, मच हेल्दियर. बस एक पानी से चलते चलते मुझे एक एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन अब भी किसी ने पूछा था, तो वो उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि पानी यूजुअली क्या होता है, जब एक्सरसाइज जब आप बहुत कर रहे हो या एरोबिक्स एक्सरसाइज कर रहे हो, या बहुत आपका बॉडी बहुत वार्म है, बहुत गर्म हो रहा हो, तब आपका सादा पानी या ठंडा पानी पीना चलेगा। क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो रहा हो तो सादा पानी या ठंडा पानी उस समय आप पी सकते हैं। वरना सबसे अच्छा जो है वो नॉर्मल पानी थ्रू आउट पीते रहिए। और अर्ली मॉर्निंग जो है, क्योंकि हमको पूरा फूड पाइप को क्लीन करना होता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है, तो आप वार्म वाटर सुबह लीजिए। एक प्रश्न फूड को लेके आ रहा है कि हमारे काफी मित्र यहाँ पे वेजिटेरियन है, और जनरली ये माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस हैव गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू हैव प्रोटीन्स. सो व्हाट वुड यू रेकमेंड टू द वेजिटेरियंस? अकॉर्डिंग टू यू,
आइडियल डाइट में या ऐसे भी रूटीन में हम जब खाते हैं तो कौन से टॉप 3 या 5 ऐसे सोर्सेज हैं प्रोटीन के शाकाहारी खाने में? अम, अ, ये बात सच है कि नॉनवेज में प्रोटीन काफी होता है, काफी, और गुड क्वालिटी प्रोटीन हम कहते हैं इसको। सो गुड क्वालिटी प्रोटीन काफी होता है, और उतना प्रोटीन बहुत सारे सोर्सेस वेजिटेरियन उसमें थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, जिस जो हाई क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में नहीं होता है, वेजिटेरियन फूड में भी हाई क्वालिटी प्रोटीन होता ही है। सोया प्रोटीन है, हम लोग पनीर खाते ही हैं। सो ये सोया टोफू है या सोयाबीन है या पनीर है, ये सारे हाई क्वालिटी प्रोटीन में ही आता है। सो ये बस हम लोग नॉर्मल भी जो थोड़ा बहुत कार्ब्स और प्रोटीन मिक्सचर है, जैसे स्प्राउट्स हैं, आप चना है, ये सारा चीजें भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ तक कि कोई भी एक नॉर्मल प्रोटीन को जो बहुत हाई क्वालिटी नहीं है, उसको भी हाई क्वालिटी जैसे बना सकते हैं। अभी हमने बेसन का चीला बनाया, अभी वो चना दाल तो है, लेकिन उसमें ही आपने पनीर का क्रम्स डाल दिया और उसको और हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाया। सो ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्स भी हैं जो आप अच्छे खासे आप प्रोटीन अच्छा वाला ले सकते हैं। लेकिन हाँ, नो डाउट अबाउट इट, ये भी सच्चाई है कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, और थोड़े कम क्वांटिटी में ही काफी सारा प्रोटीन आपको को मिल जाता चलिए, एक एक प्रश्न नॉनवेज का, आपने कहा कि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है और अग्रीड, बट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू वेगन डाइट। उसमें कोई भी एनिमल प्रोड्यूस या डेयरी प्रोडक्ट्स तो ले नहीं रहे हैं। जो लोग वेगन को सिलेक्ट कर रहे हैं एज एज द डेयरी लाइफस्टाइल, व्हाट शुड दे हैव नाउ? क्योंकि ऑप्शंस कम हो जाते हैं, और आर दे एक्चुअली reducing? You might be able to shed some light because I trust you have a health cafe जहाँ पे आप वेगन ऑफरिंग्स भी काफी शेयर करते हैं लोगों के साथ। जी। वेगन वेगन डाइट एक्चुअली अच्छा बहुत होता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सस्टेन नहीं कर पाते, उसको लंबा खींच नहीं पाते, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन ही रहते हैं। वेगन में हमारा मैक्सिमम जो कमी आती है वो प्रोटीन्स में ही आती है। अब आप इतने कॉन्शियसली अगर प्रोटीन लेते ही हैं, अगर प्रॉपरली लेते हैं प्रॉपर डाइट चार्ट के साथ में, तो आप वेगन डाइट पे जाइए। अदरवाइज बिलीव मी, वेगन डाइट आप ऐसे ही जस्ट बिकॉज आपने काफी जगह में सुना, काफी सेलिब्रिटीज को सुना है कि वेगन डाइट में आए, इट्स द वेरी इन थिंग, इसके लिए जाना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा। प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में ही आप वेगन डाइट में जाइएगा। वेगन डाइट मदद करती है अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को मद्देनजर रखते हुए पूरा खाते हैं उतना, तो ही आप वेगन डाइट पे जाइए। अदरवाइज इट्स नॉट एडवाइजेबल। आप ऐसे ही वेगन डाइट खाली वेजिटेरियन सोर्स लेके खाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा प्रोटीन कम हो जाता है। प्रोटीन की जब बात होती है तो ऐसा मैंने भी पढ़ा है कि प्रोटीन्स को लोग कई बार शाम के समय में अवॉइड करते हैं टुवर्ड्स इवनिंग, क्योंकि शायद वो गैस क्रिएट करता है या इट इज नॉट सो इजी टू डाइजेस्ट। इज इट ट्रू दैट वी शुड अवॉइड हैविंग टू मच ऑफ प्रोटीन्स टुवर्ड्स इवनिंग एंड डिनर टाइम? नॉट एट ऑल। हाँ, अगर ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहली बात, स्पेशली दोज पीपल हु आर वेट वॉचर्स, जिनको वेट का इश्यू है, उनको इवनिंग्स में प्रोटीन एंड फाइबर ही लेना ज्यादा अच्छा है। आपके जितने भी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जो अच्छे कार्ब्स हैं, वो सारा आप ब्रेकफास्ट और लंच पे ही रखिए, तो ज्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको वेट का इश्यू है। और हर एक इंसान को एक एक हेल्दी ईटिंग करना ही चाहिए। अभी अगर आप देखें, गुड क्वालिटी कार्ब्स जो है वो आपका ये दाल वगैरह में मिलता है। अगर आप मिक्स दाल एक बाउल लेते हैं, या चना चाट या ऐसा कुछ अगर आप इवनिंग में लेते हैं, समवेयर अराउंड 7-7:30, अगर आप एक अच्छा फिलिंग ले लेते हैं सैलड्स के साथ में, इनफ सैलड्स के साथ में, आपको भूख भी नहीं लगती, सबसे बेस्ट डिनर भी होता है। और जितना एक एक थोड़ा कंटेंट कार्ब्स का रात को जाना चाहिए, ये सच्चाई है कि रात को थोड़ा कार्ब्स जाना चाहिए। लेकिन कौन सा कार्ब्स, अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस दाल के थ्रू या इस जितने भी जो पल्सेस हैं इसके थ्रू आप जो कार्बोहाइड्रेट है वो लेते हैं, तो आपको नुकसान नहीं करता। वो उतना कार्ब्स मिल भी जाता है और प्रोटीन का प्रोटीन भी हो जाता है। और फाइबर उसके साथ में सैलड्स और या सूप आपको लेना बहुत जरूरी होता है।
तो ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर आपने 7-7:30 तक अगर आपने ले लिया, ना आपको गैस का इश्यू होगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कब आता है? जब आप 9, साढ़े 9, 10 बजे आप खाना खाते हैं और फिर सोने लगे, तो क्योंकि डाइजेशन में टाइम लगता है इसके लिए। वरना सबसे अच्छा तो इवनिंग में प्रोटीन्स खाना ही, इवनिंग में, आई सेड इवनिंग में, नॉट एट नाइट। जितना हो सके 7-7:30 तक खाना खाएं। काफी प्रश्न आ रहे हैं, समय लिमिटेड है। एक प्रश्न और इस लॉकडाउन से संबंधित है कि अब जब कुछ करने को है नहीं तो खाने के बाद नींद आ जाती है। सो इज इट ओके इफ आफ्टर एवरी मील आई टेक अ स्मॉल नैप? दोपहर में तो खास अच्छे से 1-2 घंटा नींद आती है। तो हमारे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि इज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून गोइंग टू हेल्प मी? इज इट अ हेल्दी बिट? यूजुअली क्या होता है, द फर्स्ट 25 मिनट्स इज द पीक डाइजेशन टाइम। जो खाने का जो मेन है टाइम, जो पीडीटी कहते हैं हम उसको। सो वो पीक डाइजेशन टाइम जो है वो पहला 25 मिनट्स है। सो वो टाइम पे तो आप को कभी सोना ही नहीं चाहिए। उस समय तक आपको थोड़ा रहना ही चाहिए। हो सके तो आधा घंटा, पौना घंटे के बाद अगर आपको थोड़ा सा लेटना भी है तो थोड़ा हेड को थोड़ा ऊंचा रख के थोड़ा देर पे आप नैप लें। अगर उससे आप वापस रिचार्ज होते हैं तो बहुत ही अच्छा। आइडियली देखा जाए तो आपको सोना नहीं चाहिए, सही आइडियली। लेकिन अगर आपको एक होता है रिचार्ज करने के लिए अगर आपको चाहिए तो एक 35-40 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा देर थोड़ा सर को ऊंचा रख के थोड़ा लेफ्ट साइड में अगर आप लेट जाएंगे तो नुकसान नहीं, उतना आप थोड़ी देर सो सकते हैं। Okay. There are many questions coming about diet and diet chart and food. So, friends, this is a continuous talk that we'd be having with Dr. Menon twice a week. It will be Tuesdays and Saturdays morning 11 a.m. Next one that we have on Saturday would be focusing a lot more on the diet part. Dr. Menon, शुरुआत में ही कहा था कि सिर्फ खाने से सब कुछ हो जाए या खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जरूरी नहीं है। आपने मुझे एक वीडियो भेजा था। Do I have your permission to play that video? Because you are an accomplished aerobics coach and sports instructor too. You have a lot of exercises that you have created, those 1-minute exercises. So if you don't mind, can I play that video for our audience here? Yes, definitely. आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो में काफी डिटेल्स में मैंने बोला भी है, तो आप देखिएगा। और 10 मिनट्स का ही वर्कआउट है और 1-1 मिनट का ही है। आप उसको ध्यान से देखिए और इसको प्लीज फॉलो कीजिए। और इसको अगर आप कंटिन्यूसली 10 मिनट करते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो इसीलिए इतना करना बहुत जरूरी है। One thing, आपने जब भेजा था मैंने कोशिश करी 10 मिनट, तो क्या मैं 3-3.5 मिनट में पूरा I was completely sweating profusely. This is also a massive fat burner. I can assure everyone here, this is a great routine, just 10 minutes. So with your permission, Dr. Menon, I'll share the video for the audience. I hope please. everyone is able to go through this. Yes. Okay, folks, the video is what she had sent me. I'm just trying to share with everyone here. You can zoom it. I'll do that. होना बहुत जरूरी है। This is the first exercise and this one. Namaskar, this is Dr. Sangeeta. This is the rhythmic way to appreciate the exercises. This is the rhythmic way to appreciate your interest in exercise. आप अपने आप को ताली बजा के सराहना कर रहे हैं। This is the first exercise and this warm-up exercise has to be done for 1 minute. Warm-up marching. Second warm-up exercise is side knee raise, which you have to do it for 1 continuous minute. Jumping jack exercise to be done for 1 minute. It is very good cardio exercise which you should never miss. Fly jack exercise, which you have to do it slowly. Go down every time you do a jumping jack, you have to squat and come up. Standing side crunch. Without bending the back, try to touch your elbows with your knee, both the side, for 1 minute. Very good for those who are having love handles. A good exercise for oblique. It's called oblique crunch.
do it both the sides. The way people used to chop wood earlier, the same way you have to do this exercise. It's called wood chopper. Do it both the ways. Look up at 90 degree. You have to bend your back at 90 degree angle and keep your back straight and look up. First stretch your hands, fold it and bring it above your head. Keep your back straight and go down at 90 degree angle. Again go up and come down. This is the last one and the 10th one. This is called lunge and twist. You have to lunge one side and you have to go down, keeping both the hands back, forward in front side and twist. The same way you have to do the other side also with the other leg. Do it carefully by not losing your balance. Thank you very much. This has been an amazing video that you sent me, and thanks a lot for allowing us to share this video. Of course, this video also is going to be shared with your permission, if I can share with other people on social media and WhatsApp as well. Gentlemen, ladies, there are many questions and there are many queries that have come in. A person like Dr. Menon with us. We would have a couple of hours and still we would be wanting for more. Saturday, 11 a.m. is when we'd be once again getting in touch with Dr. Menon on a new topic. Yes, जैसा आपने अभी सुना कि it is going to be very, very simple. Language भी जैसे उन्होंने कहा हर व्यक्ति समझ सकता है. So there would be a bit about food and there would be a bit about the fitness, the body. Thank you so much, Dr. Menon, for coming live today with us. Sorry we couldn't have the initial 7 minutes owing to the technical bit. Looking forward to an engaging Saturday once again. Anyone has any questions, you can post it. We'll have the questions with us and we'll see to it that Dr. Menon answers to them next time. Thank you. Have a great day. Thank you, Mr. Himadri, for calling. Thank you very much.